Hello, everybody. Once again, you are watching me on Literati Sadda. I, Gaurav Sharma, welcoming you once again. So, what we were discussing, we were simply discussing about the few things related to assistant professor's interview. And I have already given you three classes, and it might be class number four in the series. I have basically given you idea what kind of question they can ask you and what kind of domain you supposed to have your mind when you gonna present yourself before the interviewers. Okay, so in today's video, I will be talking about few more things that should be included in your knowledge. So what you will do? Listen. First of all, you're supposed to keep one thing in mind when you're gonna face interview. So you must face some professors, and they are somehow connected to two major universities. It is actually my perspective, what I experienced in previous interview. Okay, so it was like you're supposed to go through syllabus of masters related to the University of Gwalior and University of the Indore. So what we call today both of the University of Gwalior, we call it Jiva University, and University of Indore that we call as DLB University. Okay, so you should go through the syllabus of masters of both the universities. Okay, first of all, you will do that. Okay, because what you will face is that the professors who are going to interview you must be related to these two universities according to my perspective. Okay, what I observed in previous interview. Okay, so for that they must be practicing over the syllabus of Master of Arts in the field of English literature. So what you will do, you will go through it at least once so that you can have fair idea about the, I should say, the part which fall under critical theory in Indian writing in English and along with that American literature, something like that. Okay, so you will have a clear idea about what is in the syllabus of masters from the both universities, as the teachers are somehow, or I should say professors are somehow related to these two universities. Now what we will keep in our mind, one more thing is that, listen, nowadays DET, doctoral entrance test of whether it is related to DABB or it is somehow related to the University of Gwalior, that is today known as Jiva University. So you're supposed to go through the syllabus of DET. Right now it is not being conducted by the universities, just because University Grant Commission UGC has given some sort of new rules, and under that DET is cancelled, and now the students are being taken from the UGC net. Okay, so right now it is totally stopped, but for your kind information I must let you know that you supposed to go through the syllabus of doctoral entrance test of both the universities. Okay, why? Because the teachers whosoever are going to interview you must be related to the same, है ना? And they must have done their PhD from the concerned university. I hope you are getting my point. मैं जो कहना चाहता हूँ वो सीधा इतना सा है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी और ये आपकी डीएवीबी यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पहले डीईटी हुआ करती थी। डीईटी होती थी पीएचडी एंट्रेंस की, ठीक है? तो उसमें जो पार्ट्स दे रखे हैं उनके जो मेजरली सिलेबस हैं उनको देख लेना। उसके बाद में आपका जो मास्टर्स आपने किया है ना, ज्यादातर जो संभावना प्रकट होती है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, या तो वो जीवा यूनिवर्सिटी के मास्टर्स का सिलेबस हो या फिर आपका डीएवीबी का हो, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो आपसे इंटरव्यू लेंगे, उनकी संभावना ज्यादातर ऐसी बैठती है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले इंटरव्यू का, कि वो लोग कनेक्टेड थे इन दो यूनिवर्सिटी से, है ना? तो वो जरूर इस सिलेबस को काफी समय से पढ़ा रहे हैं, और यदि पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा संभावना बनती है कि वो यहीं से क्वेश्चन पूछे। मैं समझता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। तीसरा चीज ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ईएनटी इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचिंग वगैरह वगैरह है, तो उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना, फिजिकलिटी ऑफ द लैंग्वेज, है ना, जैसे किस प्रकार से साउंड पैदा होता है, साउंड क्या है, जैसे पिजन हुआ, क्रियोल हुआ, है ना, लैंग्वेज क्या है, जनरेटिव थ्योरी क्या है, ये तो आपके सिलेबस में भी है ना। तो ऐसी चीजों का ईएलटी से रिलेटेड जो चीजें हैं आपको उनका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है, भूलना नहीं है ना, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। कई बार क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कई बार ऐसे प्रोफेसर्स मिल जाते हैं जिनकी अपनी पीएचडी ही लैंग्वेज में, और जब लैंग्वेज में पीएचडी होगी तो समहाउ आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपने डोमेन से क्वेश्चन पूछेंगे,
जरूरी नहीं है सामने वाला मास्टर हो हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में, है ना। तो वो क्या करेगा, जो उसको आता होगा वो पूछेगा। हाँ, जरूरी नहीं है आपकी जो चॉइस हो वहां से, वो अलग बात है। कई बार वो लोग ऑप्शन दे देते हैं और आप कह सकते हैं कि आपकी जो है जवाबदेही होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करी जाए एक और डोमेन की, तो वो डोमेन है पीएचडी, है ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिसको आप कह सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने पीएचडी ऑलरेडी कर रखी है, उनका इंटरव्यू 90% उसी के राउंड घूमेगा, पीएचडी के राउंड। तो उस पर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेनी है। और जिन व्यक्तियों की अभी पीएचडी नहीं हो पाई है ना, तो जिन्होंने जैसे सिनॉप्सिस वगैरह दे दिया है ना, जिनका रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जो है टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है, इंटरव्यू आपका जो है हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा, तो वो सामने वाला आपसे ये एक्सपेक्ट करके चलेगा कि आपने पढ़ लिया है कोर्स वर्क। और यदि आपने कोर्स वर्क पढ़ लिया है तो आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए रिसर्च एथिक्स वगैरह, है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह, है ना, थोड़ा बहुत फिलोसफी के बारे में तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है ओपन एक्सेस, क्या होता है क्लोज एक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से किस एडिशन का जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जो है ऑफ अमेरिका, है ना, इंग्लिश से जो लिया गया है, ये कह सकते हैं एक विशेष नोटबुक है जिसमें कुछ नॉर्म्स है रिसर्च के लिए, है ना, जिसका इस्तेमाल होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि कई बार क्या है, जब आपका कोर्स वर्क चल रहा है तो वो आपसे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। एमएल एडिशन आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो उसमें वर्ड्स हैं वो किस कह सकते हैं, मतलब जो जो सीरियल नंबर है किसमें, है ना, कौन सी राइटिंग स्टाइल है ना, किस प्रकार का साइज रहना चाहिए फॉन्ट्स का, है ना। ये सारी चीजें भी आती हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कोई भी रिसर्च प्रपोजल है ना, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। कोई थीसिस है तो उसमें कौन कौन से भाग हो सकते हैं, डिक्लेरेशन हुआ, है ना, जैसे फ्रंट पेज उसका लग गया, है ना, एक आपका कह सकते हैं जो मार्किंग वाला होता है वो, है ना। तो जो भी जो थीसिस का डिजाइन होता है या फिर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, तो ऐसी चीजों पे भी आपको जो है काम कर लेना, ठीक है। और इतना कर लेना है, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सामने आपके व्यक्ति बैठा होगा, टॉपिक आपका है, पीएचडी करके आप गए, उसने उस टॉपिक पे पीएचडी नहीं करी है, तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि वो आपको उलझा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं उलझा पाएगा। आपको आपकी थीसिस से 2 बार होके निकल जाना है ना। और जो आपकी जो बिब्लियोग्राफी है या रेफरेंस कह लीजिए आप अपनी लैंग्वेज में, उसमें जो दे रखे हैं मेजर ऑथर्स और बुक्स, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके चाहिए। अगर पीएचडी आपने कर रखी है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कहीं और से क्वेश्चन वो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं वो A to Z डॉक्टर होंगे, मतलब सबके पास पीएचडी होगी, ज्यादा संभावना है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है या फिर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा व्यक्ति योग्य है इंटरव्यू में बैठने की। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है उसके पास पीएचडी होगी और ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपसे पीएचडी से क्वेश्चन पूछे। जो व्यक्ति विशेष जिनके पास पीएचडी नहीं है, इस सूरत में या तो वो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, अगर परस्यू कर रहे हैं तो कोर्स वर्क से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मैंने आपको बता दिया है जो जो चीजें हो सकती हैं, ज्यादातर जो मैं समझता हूँ कि वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन उस एरिया से रिलेटेड। ये 4 मेन कंसर्न टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मैंने आपको अभी ब्रीफ में बताने का प्रयास किया है ना। बाद बाकी आप कितने भी बड़े 30 मार खाओ, है ना, कितने भी बड़े ज्ञानविद व्यक्ति बने रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले का जो दिमाग है उससे भी आपका इंटरव्यू तय होता है। आपको ये पता होना चाहिए। वैसे सामान्यतः मेंबरों की संख्या 5 होती है, लेकिन जो करंट में जो इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में जो मेंबर्स बैठे थे उसमें 4 मेंबर्स थे, उसमें से एक अध्यक्ष साहब है, बाकी 3 मेंबर बैठेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक साथ 4 ब्रेन चल रहे हैं और आप सिंगल हैं, है ना। तो जब 4 दिमाग एक व्यक्ति के ऊपर चलेंगे तो उनको हैंडल करना अपने आप में ही बहुत बड़ा हरक्यूलिन टास्क है। आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं तो आप कुछ कर लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छे अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति भी खाली हाथ वापस आते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें। तो कह सकते हैं इसमें डेस्टिनी भी एक अच्छा रोल अदा करती है। तो आपको जेंटल रहना है ना, और सदैव रिस्पेक्टिव तरीके से सामने वाले के साथ बिहेव करना है। यदि नहीं आता है तो जेंटली सॉरी बोल दीजिए। आर्ग्यू करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहां से आपका जो इंटरव्यू है वो कैओटिक मोड में चला जाए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सारे बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में, ठीक है।
ये मैंने आपको बेसिक ग्राफ या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना के दिया है, जिनके बेस पे अदर देन इंग्लिश लिटरेचर कुछ क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं। एक एक कह सकते हैं एक तरह से मॉड्यूल प्रिपेयर कर दिया जिन पर आपको फोकस रखना है। क्या? डीईटी के सिलेबस और मास्टर्स का सिलेबस, साथ ही साथ में जो आपका कोर्स वर्क हुआ होगा ना पीएचडी वाला, उस पर थोड़ा सा फोकस रखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, इथिक्स विथिक्स है ना, जैसे ओपन एक्सेस हुआ, क्लोज एक्सेस हुआ, इन सारी चीज़ क्या नॉर्म्स होने चाहिए जब आप किसी पेपर को पब्लिश करने जा रहे हैं उसकी, है ना? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब इनके बाद में यदि मैं आगे चलूं तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं इस क्लास के बाद में प्रयास करूंगा कि इंटरेक्टिव सेशंस रखूं। मैं कैंडिडेट्स को कह सकते हैं इनविटेशन दे रहा हूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं। यदि आप में से कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हो, है ना, तो मुझे कुछ कैंडिडेट्स की जरूरत है, तकरीबन 2 या 3 या 4, हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं डेली उनके साथ इंटरेक्शन बनाता जाऊंगा और आपको एग्जाम्पल देता जाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको उनका कैसा जवाब देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ साझा करी है, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। क्षमा चाहूंगा, मैंने मेरी लैंग्वेज को पूर्णतः हिंदी में रखा है केवल इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं है, और मैं समझता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो मैसेज है, जिसको मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, ओपन एक्सेस पे यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी के सम्मुख, कोई भी व्यक्ति विशेष मुझे सुन सकता है, समझ सकता है, और ज्यादा लोगों तक मेरे जो थॉट्स हैं वो पहुंच पाए। इसके लिए भाषा का जो माध्यम है एक ऐसा होना चाहिए जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। इसी के चलते मैंने हिंदी भाषा का सहारा लिया है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मोर देन इनफ है आज के लिए। और अगले सेशन में मैं अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो आपके जो सहपाठी हैं, जो भी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हो सकता है अगले कुछ दिन में मैं एमपी सेट के लिए पढ़ाना शुरू करूं या फिर यूजीसी नेट के लिए, दोनों में से एक को मैं पकड़ूंगा। ऑलरेडी मैं एमपी टेट वर्ग 1 के बारे में अभी पढ़ा रहा हूं और उम्मीद करता हूं उसका जो मेंस होगा उसके लिए भी पढ़ाऊं अगर समय बचा तो। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।